You have climbed it, you have done a few other mountaineerings also. What is the biggest lesson after so many years? जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक डाउन after summiting Everest 23rd May 2019 at 5 in the morning, I reached the top and it was a 9-year long dream coming to a very beautiful conclusion. I was completely ecstatic and completely happy and completely, for the first time in my life, I would say, ठहरा हुआ आया था लाइफ में कि 9 साल 15 to 24, this is the मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स इन एनीबडीज लाइव्स, राइट? जब भी आप फॉर्म हो रहे हो, आपका माइंड बॉडी फॉर्म हो रहा है. फॉर मी इट वॉज ऑल एवरेस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट. एवरेस्ट क्लाइम करना और उसकी जर्नी वॉज माई साधना इन सो मेनी वेज for my body, mind and my spirit. While I was coming back down, just 2 hours after I reached the summit, जो मैं आपको कहानी बोल रहा था, one of my team members, he passed away in front of me. Climbing up is only the 20% part. वैसे आप technically देखो तो halfway हुआ हो, halfway up, halfway down. But why do I say only 20% up and 80% down? Because all your goal, all your focus is to reach the top. लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऊपर पहुंचने के बाद भी संभलना है ना. तो वो 80% जो एनर्जी, फोकस और वो सेलिब्रेशन की जो इच्छा है, वो जब तक आप बेस कैंप ना पहुंचो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो मोस्ट पीपल एट 95% डेथ्स ऑन माउंटेन्स हैपन्स व्हाइल पीपल आर कमिंग डाउन. सो तभी फोकस लूज करना इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक. एंड कहीं ना कहीं जो मेरे टीम में ये व्यक्ति थे, he got very exhausted, so उन्होंने एक गलती की and he fell inverted. It was like a almost vertical 90-degree wall that we were coming down from. मैं नीचे आ गया था और वो rappelling कर रहे थे. Rappelling is a technique we use to come down. And suddenly he got inverted. पैर ऊपर और सर नीचे हो गया. And he was so exhausted he was not able to bring himself up. तो हम खड़े खड़े देख रहे. अभी जस्ट मैं, आप सोच रहे होगे आप खड़े खड़े देख रहे हो, कुछ किया क्यों नहीं. कैंप 3 पे जब मैं पहुंचा था, while I was going up, just to give you an example how difficult life is up in the mountains. मेरे जो बूट्स होते हैं उसका फर्स्ट लेयर जिप खोलने में, जिप खोली मैंने, बैठा हूँ मैं, जिप खोली, टेंट के अंदर बैठे बैठे इतना ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे. माउंटेनियरिंग में एक कहावत है, इफ समथिंग हैपेंस टू यू अबव डेथ जोन, अबव 8000 meters of altitude, you are on your own. Nobody is going to come rescue you. So you have to be absolutely aware of your every step, breath and thought if you want to make it down. So कहीं ना कहीं he was very exhausted and he fell up there and we were not able to help him. And my Sherpa, our climbing guide, after some minutes he went up. By the time he reached him, he had passed. We don't have any instruments to see if he actually passed at that moment, but he was not responsive at all. This was the first time when I saw somebody die in front of me. पहाड़ों में ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है, होता है, बट आपके आंखों के सामने जब होता है तो that's when you start questioning many things in life. I was just sitting there, not even understanding what to feel. कि रो कि क्या करूँ, that level of confusion. And I was just like कि मैंने 2 घंटे पहले एवरेस्ट समिट किया and it doesn't mean anything right now. जब मौत सामने आके खड़ी रहती है, तब जो भी चीज़ आपके लिए लाइफ में 50-60 साल या जितने भी साल के आप हो, वो जितनी इंपॉर्टेंट आपने पकड़ के रखी थी, जब मौत आती है सामने तो आपका वो भ्रम, इल्यूजन फूटता है कि मैंने इतने साल लाइफ के जिसके पीछे भागा वो तो कुछ नहीं था. मौत सब छीन लेगी मुझसे, चाहे वो एवरेस्ट हो या $1 बिलियन हो या आपकी वाइफ हो या पापा हो या मम्मी हो या कुछ भी हो. लेकिन कुछ ऐसा है जिसको मौत नहीं छीन सकती. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी बिकॉज वो सारे सीन्स याद आए मुझे. बट द लेसन वॉज, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, when I was exiting the gates of Mumbai airport after my Everest expedition, which is something that I was praying for when I was up there, कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो. एंड जो मेरे 3-4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई और जो आपके करीबी लोग हैं, उनको मैं एक बार देख पाऊँ. तो जब मैं वो गेट एग्जिट कर रहा था तब वही 3-4 चेहरे मैंने देखे. रीचिंग समिट ऑफ एवरेस्ट, उसके सामने टाइटर फिश. दिस वॉज माई एवरेस्ट. एंड आज स्वामी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं एक चीज़ कहूँगा, दिस इज़ समथिंग आई नेवर शेयर इन अ पब्लिक गैदरिंग बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे. बट ही वॉज द योगी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर. एंड योग का मतलब ही ये है कि जुड़ना किससे, जिसने आपको बनाया है ना. तो
एवरेस्ट ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जब तक तुम जी रहे हो, अगर तुम अपने क्रिएटर से नहीं जुड़े, इट्स अ वेस्टेड लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट योग मीन्स. एंड एवरेस्ट अपीयर्ड इन माई लाइफ एज माई गुरु इन सो मैनी वेज, जिसने मेरा इल्यूजन तोड़ा कि तू तेरे गुरु के पास आया फिर भी तुझे कुछ नहीं मिला. अब जाग बच्चे, और जो सच में लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो ज़िंदगी और मौत तुमसे जो मौत तुमसे नहीं छीन सकती है, उस पर काम नहीं करोगे तो अनदर वेस्टेड लाइफ. तो ये सीख थी कि जो लाइफ का हाईएस्ट गोल है उस पर काम करें. सॉरी, थोड़ा एटमॉस्फेयर को हैवी कर दिया, लेकिन आज दिल से ये निकला स्वामी जी के ब्लेसिंग से. बहुत लोगों के आंखों में आंसू आ गए. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट.